Okay, so we are preparing to stream live and हम कुछ देर में live जा रहे हैं. Okay, wonderful. We are live. Assalamu alaikum everybody. Just give me a moment ताकि मैं इस session को pin कर दूं और मैं सबको tag कर दूं, and so that everybody can join in and nobody misses out. ठीक है. All right. अस्सलाम वालेकुम everybody. I'm back. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका ज्वाइन करने का. आज ग्लोबल मेंटल हेल्थ डे है एंड इससे बेहतर कोई दिन नहीं हो सकता था कि हम पेरेंट्स के साथ बैठें और बात करें और लोग we work together for better parenting and for our children also. So आज हमारा जो टॉपिक है वो है mental health, early signs and symptoms in kids. हमारे साथ हैं फरा आफ्ताब, Amra Khan or Nausheen Farooq. They are very accomplished psychologists and very seasoned, and they hold a lot of wisdom, and you must have seen them often providing their suggestions and observations in the group also. So Farah, over to you guys one by one. You can perhaps introduce yourself in depth also, and then we can go on towards our questions. Okay, I'm Farah Aftab. I'm a clinical psychologist and I'm a senior lecturer at the university. So I practice in different organizations, and since a long time, I'm actually attached with Parvarish as well as a panel psychologist. Why I joined this group? Because I think parenting is the vital role in anybody's life. वो आपको ग्रो करता है, वो आपकी अपब्रिंगिंग बनाता है, वो आपको एक आइडेंटिटी देता है. सो आई थिंक परवरिश इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड पेरेंटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स व्हाई आई एम पार्ट ऑफ दिस organization. Ishun, you're mute. Yeah, I'm sorry. Amra, please go ahead. Okay, I'm Amra Khan, and most of my experience is in the field of research, and I have studied counseling as well, and I run a page by the name Ask Psych, and I counsel mostly about day-to-day life issues. Nausheen, aa jaye aap bhi. Okay. Okay, my name is Nausheen Farooq, and I have been working as a clinical psychologist for a good 19 years. My work majorly revolves working with children, adolescents, and adults, where my main area of interest is in assessments and doing therapy and counseling. Lekin saath saath I do a lot of trainings, faculty, different organizations, and I have been into different teaching positions over the past 15 years of teaching. And Parvarish has been a platform that has helped me evolve and learn from my peers and a lot of parents. So being a parent, that has also helped me be, smooth my rough edges. So glad to hear this. अच्छा जी, अब हम officially अपना live session start करते हैं with questions. जब मैंने post किया था तो बहुत सारे parents ने बहुत सारी अपनी queries छोड़ी, and all of these questions that we have set today are based on all the questions that we had received on our earlier post. So हम सबसे पहले सवाल के साथ start करते हैं कि what are the warning signs of mental illness in children? And who would like to go ahead to answer this? All right, I'll start.
As a parent, sometimes we are unable to pick up the early signs because for us, वो हमारा जो बच्चा होता है, मे बी उस वक्त हम फर्स्ट टाइम पेरेंट्स हों, तो हम बहुत सारी चीजों को मिस आउट कर जाते हैं. वेयर एज स्कूल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे काफी ज्यादा बच्चों की चीजों को फौरन पिकअप किया जाता है एट अ वेरी अर्ली एज. बट सेइंग दैट, ऐसा नहीं है कि घर पे हम पिक नहीं कर पाते. हमारे जो फैमिली सपोर्ट होती है, जिसमें आपके एक्सटेंडेड फैमिली हो गए, फैमिली फ्रेंड्स हो गए, तो वो जरूर आपको बताते हैं कि बच्चा किसी तरीके से कुछ डिले है किसी चीज में, या वो डिस्ट्रेस शो कर रहा हो. सो ये दो कॉमन चीजें होती हैं जिसमें हम बहुत सारी और चीजों का वक्त के साथ बात करेंगे, लेकिन कोई भी डिस्कम्फर्ट और डिस्ट्रेस और डिले इन माइलस्टोन्स, ये एक आपका वार्निंग साइन होता है जो कि आगे किसी भी और चीज की आपको पहले से निशानदेही कर रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा बात देर से करता है, अगेन डिपेंड करता है कि कितना लेट और कितना बोलता है या किस तरीके से वो एक्सप्रेस करता है. दैट कुड आल्सो लीड टू डिफरेंट थिंग्स. सो वी नीड टू सी कि क्या आपके आसपास के बच्चे जो चीजें या जो माइलस्टोन्स अचीव कर रहे हैं, क्या वो उनसे मुख्तलिफ है, या इस बच्चे का एक्सप्रेशन, जिस तरह से वो अपनी थॉट्स, अपनी फीलिंग्स और अपने बिहेवियर शो कर रहा है, वो मुख्तलिफ है. बिकॉज इन अ नटशेल अगर मैं कहूँ तो बिहेवियर इज कम्युनिकेशन. जो बच्चे का बिहेवियर होता है वो आपको बहुत सारी चीजें कम्युनिकेट कर रहा होता है, एंड वी नीड टू लिसन एंड वॉच out for what the child is trying to make us understand. Very completely agreed, completely. फरहान, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि what are the most commonly occurring mental health issues in school going kids and teens? Because आप teens के साथ बहुत काम करती हैं, आप school going बच्चों के साथ बहुत काम करती हैं, तो आप हमें प्लीज बताएं इस बारे में. Okay, so when we talk about kids, currently अगर देखा जाए तो school going kids में बहुत ज़्यादा learning disability बहुत commonly नजर आ रही है. ADHD बहुत common है. So neurodevelopmental conditions, बहुत सारी conditions जहाँ पे आपके brain की development या आपके milestones वगैरह जो हैं delayed, common जो symptoms जैसे मिस नौशीन ने भी बताए, so ये आपको common नजर आएंगे जहाँ पे बच्चों का attention बहुत ज़्यादा कम है, hyperactivity ज़्यादा है, be it like a genetic cause, be it the cause of environmental factors as well. Speech delays बहुत ज़्यादा नजर आ रहे हैं, considering the fact that post COVID हमने बच्चों के अंदर of course उनका बहुत ज़्यादा exposure था to screen, which is why that this has also added into the problem as well. उसके अलावा what I see in teenagers most commonly is anxiety, body image के बहुत ज़्यादा problems हैं. We don't understand कि when as soon as the child hits the puberty, पहले तो उनको we have to create awareness. What is puberty is about? What kind of changes are you going to see in your body? वो important है because sometimes kids are not ready for those changes. और फिर वो जब changes आ जाते हैं तो उनकी बहुत ज़्यादा body image का element बहुत ज़्यादा common हो जाता है. Plus anxiety बहुत common है. Post COVID मैंने OCD बहुत ज़्यादा बच्चों के अंदर common देखा है. Depression is getting so prevalent in our society right now, considering कि ये छोटे से छोटे बच्चे के अंदर भी depression के signs and symptoms नजर आ रहे हैं. Self-esteem is a major issue. So these are major common things that I'm seeing during my practice that kids are coming to us. Anxiety, self-esteem issues, body images, depression. Because of those things, depression बहुत common है, anxiety बहुत common है, and neurodevelopmental conditions. ये elements हैं जो कि आजकल commonly आपको नजर आएंगे, जिनके ऊपर काम करने की बहुत अशद जरूरत है. अच्छा, मैं फिर May I add? Yeah, please go ahead. Nौशीन, आप बताएं. Okay, I'm just going to add to what Farah just said, because definitely जब हम बात करते हैं depression in children, because this is something that was very close to my heart, हम ये पहला सवाल करते हैं बच्चे डिप्रेस क्यों हो सकते हैं. हम बच्चे के साथ डिप्रेशन का वर्ड साथ में कोरिलेट नहीं कर पाते, लेकिन एज यंग एज 6 years old इसमें डिप्रेशन डायग्नोस हुआ है. उसमें हमने क्लिनिकली डायग्नोस किया है. बच्चों के सिम्टम्स थोड़े से फर्क हो जाते हैं बड़ों से अगर आप कंपेयर करें तो बच्चे आपको इरिटेबल मूड के साथ नजर आते हैं. बच्चों के साथ फिजिकल कंप्लेंट्स होती है, यानी कि वो पेट का दर्द, सर का दर्द, वॉमिट करना, जिसकी कोई मेडिकल कॉज ना हो. प्लस पीयर प्रेशर्स जिसमें एक्सेप्टेंस है बच्चों की,
सोशल आइसोलेशन है, बॉडी शेमिंग की बात करी। इसके अलावा पेरेंटल जो हमारा अपना जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, सो वहाँ बच्चों के साथ कम्युनिकेशन, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम चिल्ड्रन, not understanding the potential of the child and pressing them to perform to a level which probably they are not capable, or they are capable but not equipped. So जैसे कि उन्होंने बात की कि लर्निंग डिफिकल्टीज होती हैं, बहुत दफा लर्निंग डिफिकल्टी के साथ भी एकेडमिक स्ट्रगल्स हो रही होती हैं, बट अगेन उन बच्चों की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं। अगर हमें वो पता चल जाए तो हम बहुत जल्दी इंटरवेंशंस देकर उनको एक बेहतर तरीके से, स्ट्रक्चर्ड तरीके से उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं। और जब परफॉर्मेंस की हम बात करते हैं तो पर्सनालिटी उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज ये सब चीजें वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से सेल्फ एस्टीम इश्यूज आपको बहुत नजर आते हैं, विच इनिशियली हम समझते थे कि जनाब थोड़ा लेट होता है 15 साल की उम्र में, लेकिन अब कॉपरेशन खत्म होकर कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि बहुत अर्ली इयर्स में बच्चों में आपको ये चीजें नजर आ रही होती हैं। सो आई थिंक फॉर देम इट्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू फिल्टर, और जब वो फिल्टर नहीं कर पाते तो वो कंफ्यूज होते हैं, और जब वो कंफ्यूज होते हैं तो वो इस तरह की सारी फीलिंग्स और थिंकिंग पैटर्न की तरफ जाते हैं, जो कि ऑब्वियसली उनको किसी नॉर्मल से हटकर और परेशानी की तरफ लेके जाया जाता है। ठीक है, अब जो मेरा अगला सवाल है, एंड आई वुड लाइक ऑल ऑफ द पैनल एक्सपर्ट्स टू pour in their answers on this. आप लोगों का क्या ख्याल है, जैसे फराह बात कर रही थी कि एंजाइटी के बहुत इश्यूज हैं, सेल्फ एस्टीम के बहुत इश्यूज हैं, डिप्रेशन के बहुत इश्यूज हैं, बॉडी एक्सेप्टेंस के बहुत सारे इश्यूज हैं बच्चों में। इतने सारे, जब ये बहुत बड़े बड़े इश्यूज, these are not something very small or minor, these are very major issues, right? These are red flags. इसमें वालिदैन और घर का माहौल कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है? मैंने how much are they getting, मतलब क्या ये चीजें, क्या पेरेंटिंग, क्या घर का माहौल, क्या वालिदैन की जो बिहेवियर है वो इसमें एक रोल प्ले कर रहा है इन सारी चीजों में? Definitely. Parental relationship with each other and with the child, ठीक है, प्लस फिर open communication है, acceptance of your child the way they are. There are lot of things, your discipline practices, child rearing practices, how frequently you reinforce, how open are you to conversations, how open are you to listening to them, and not only giving a feedback all the time, because बच्चे जो हैं वो अपनी बात सुनाना चाहते हैं, तो क्या आप उनको सुनते हैं? So I think open communication and parenting itself has to be modified. और बच्चों के साथ साथ जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, हम भी एज पेरेंट्स ग्रो करते हैं, और हमें भी ग्रो करना चाहिए और सीखना चाहिए कि हम बच्चों के साथ कहाँ पे वो लाइन ड्रॉ करें जहाँ फ्रेंडलीनेस भी हो, फर्मनेस भी हो, लेकिन रिस्पेक्ट अपनी जगह हो. सो इट इज बैलेंसिंग ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, जिसमें हम कहते हैं कि हमारा जो एक बच्चा है वो पूरे एनवायरनमेंट को हमें बनाना है, हमें वो प्रोवाइड करना है. जैसे ये बहुत कॉमनली कहा जाता है ना, अगर फूल को अच्छा आपको ग्रो करना है, नर्चर करना है, तो उसके एनवायरनमेंट को अच्छा करना होता है. तो एनवायरनमेंट में पेरेंट्स सबसे मेन इम्पोर्टेंट रोल उन्हीं का है. अच्छा, मेरा भी नौशीन की तरह यही ख्याल है और एक्सपीरियंस भी यही है कि पेरेंट्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, और जो एनवायरनमेंट पेरेंट्स क्रिएट कर रहे होते हैं बच्चों के लिए, अगर पेरेंट्स के आपस में कॉन्फ्लिक्ट है और वो कॉन्फ्लिक्ट्स की जो रेजोल्यूशन है वो हेल्दी नहीं है, बहुत सी दफा पेरेंट्स ये समझ रहे होते हैं कि हम अगर बंद दरवाजे के पीछे आपस में उलझ रहे हैं तो हमारे बच्चे अनअफेक्टेड हैं. ऐसे नहीं होता है. अगर आपके कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं हो रहे और यू डोंट हैव अ हेल्दी वे ऑफ कॉन्वर्सेशन, तो वो चीज बच्चे को, आप अगर आपकी कोल्ड रिलेशनशिप भी है तो वो चीज भी बच्चे को बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट करती है. और इस सारी चीज में जो मेरे पास केसेस आते हैं, क्योंकि मैंने शुरू में भी बताया कि मैं डे टू डे जो इश्यूज होते हैं उनके केसेस को डील करती हूँ, काउंसलिंग मेरी डोमेन है. तो उसमें जो मेरे पास केसेस आते हैं, यूजुअली मदर्स केसेस लेके आती हैं अपने बच्चों की, जो कि जिनके बिहेवियरल चेंजेस उनमें ऐसी आ रही होती है जो कि वो कोप नहीं कर पा रही होती. तो बेसिकली पेरेंट्स आपस में तो जो भी उनके दरमियान चल रहा है वो चल रहा होता है, वो बच्चों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते. बहुत सी चीजें ऐसी हैं, एक तो मैं बात कर रही हूँ पेरेंट्स के आपस में कॉन्फ्लिक्ट की जो रिजॉल्व नहीं होते. लेटेस्ट रिसर्च जो है
वो इंडिकेट करती है कि कॉन्फ्लिक्ट्स पेरेंट्स के दरमियान होना बुरा नहीं है, उन कॉन्फ्लिक्ट्स का हेल्दी वे में रिजॉल्व ना होना बुरा है। बच्चों के सामने अगर पेरेंट्स में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बच्चों के सामने आ रहा है, तो इससे बच्चों में कोई इशू नहीं होता, बच्चे रिजिलियंट होते हैं अगर पेरेंट्स उनको हेल्दी वे में रिजॉल्व कर लेते हैं। दूसरी ये चीज है कि जिंदगी में बहुत सी तब्दीलियां आ रही होती हैं और वो एंटिसिपेटेड तब्दीलियां होती हैं। पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को कम्युनिकेट नहीं करते हैं टाइमली, बच्चों को कॉन्फिडेंस में नहीं लेते। बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, जैसे एक 3 ईयर ओल्ड का पहली दफा स्कूल जाना। अब आपने देखा होगा कि बच्चे जब कुछ बच्चे तो बड़े हंसते खेलते स्कूल चले जाते हैं और कुछ बच्चे जो है वो महीना 1.5 महीना एट टाइम 6 मंथ तक वो रोते रहते हैं। और वही नौशीन ने शुरू में आपको अर्ली वार्निंग साइंस में बताया था कि बच्चों के जो सिम्टम्स होते हैं वो बड़ों के सिम्टम्स से जरा डिफरेंट होते हैं। जैसे बच्चे को पेट दर्द की बहुत शिकायत है, वो सर दर्द की शिकायत कर रहा है और ये मेडिकल रीजन से एक्सप्लेन नहीं हो रही है, उसको वॉमिट बहुत ज्यादा हो रही है, खाता है सुबह के वक्त नाश्ता नहीं कर पाता, वॉमिट कर देता है। तो ये सारे जो साइंस हैं अंडरलाइंग मेंटल हेल्थ इश्यूज के होते हैं। अब जब आप बच्चे को पहली दफा स्कूल में एडमिशन कराने लगे तो आप कितने पहले से उसकी प्लानिंग करते हैं। आप ये प्लान करते हैं कौन से स्कूल में बच्चा जाएगा, आप ये प्लान करते हैं आपको फी कैसे अरेंज करनी है, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब बच्चा पैदा होता है मेरे ख्याल से उसके साथ ही पेरेंट्स सोचना शुरू कर देते हैं कि बच्चे को कौन सी एज में कहाँ पे भेजना है, होम पेरेंटिंग होगी या होम स्कूलिंग होगी या स्कूल में भेजा जाएगा। सो बच्चे को के साथ ही कम्युनिकेशन रखना बहुत जरूरी होता है कि अच्छा जब आप उसकी स्कूल जाने का साल रह गया तो उसको मेंटली प्रिपेयर करना शुरू करें कि अब आप स्कूल जाएंगे, स्कूल में आपका बैग होगा, उसको बैग लेकर दें और उसको पार्क में लेके जाना शुरू करें। उसको ऐसे जहाँ पे वो थोड़ा टाइम स्पेंड करे दूसरे बच्चों के साथ, स्ट्रेंजर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करे, नए रिलेशनशिप्स बनाना सीखे। अगर वो ये स्किल्स जो है 2-2.5 साल की एज में सीखना शुरू कर देगा तो उसके लिए स्कूल में एडजस्टमेंट आसान होगी। तो ये बड़ा अवॉइडेबल सा इशू होता है, लेकिन ड्यू टू ओवरलुकिंग कि पेरेंट्स सोचते नहीं है कि बच्चे को भी प्रिपरेशन की जरूरत है, उसको भी मेंटली, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं उनको ये छोटी छोटी चेंजेस बहुत बड़ी लगती है, उनके लिए बहुत बड़ी चेंज होती है। फिर एक बड़ा कॉमन सा इशू मैंने ये चीज नोटिस की है, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जैसे आर्मी की फैमिलीज भी होती हैं, कुछ मल्टीनेशनल्स भी ऐसी हैं जिसमें पेरेंट्स की ट्रांसफर्स होती रहती हैं फ्रिक्वेंटली, 1 साल 2 साल 4 साल के बाद वो नई जगह पे ट्रांसफर हो जाते हैं, या एट टाइम्स पेरेंट्स जो है वो बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए खुद दूसरी सिटीज और दूसरी कंट्रीज में चले जाते हैं। बच्चों का एक पीयर ग्रुप होता है जो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और पेरेंट्स ये रियलाइज नहीं करते कि वो उसको छोड़ने का उनको एक दुख होगा, तकलीफ होगी, सैडनेस, ग्रीफ, और वो इट मे बी कन्वर्टेड इनटू डिप्रेशन एज वेल। तो उसमें भी बच्चों को कम से कम 2-3 महीने पहले से बच्चों को मेंटली प्रिपेयर करना शुरू करें कि आपकी जिंदगी में ये चेंज आने वाली है, सो दैट दे मे से देयर गुड बायज, उनके दोस्त उनको जो है प्रॉपरली सी ऑफ करें, जो भी उनकी रिचुअल्स होते हैं, एट टाइम्स दे थ्रो पार्टीज और दे एक्सचेंज द कार्ड्स एंड नंबर्स एंड ऑल दैट। तो ये चीजें जो है इनका बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो इसी किस्म की चीजें, ये तो मैंने आपसे बात की प्री स्कूलर्स की या अर्ली स्कूलर्स की जिनकी जिंदगी में इस किस्म के इश्यूज आते हैं। इवन ये जो ट्रांसफर्स की चीज है, ये बहुत बड़ी एज तक बच्चों को, जैसे 13-14 साल तक बच्चों को काफी, अब तो खैर सोशल मीडिया आ गया, इसकी वजह से बच्चे इन टच रहते हैं, लेकिन एक मखसूस एज तक पेरेंट्स जो है उनको अलाउ नहीं करते हैं। और वैसे भी जनरली भी जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, दे आर नॉट मेंट फॉर अंडर 18। सो उसमें भी अंडर 14 की बात होती है, तो उसमें बहुत जरूरी होता है कि पेरेंट्स जो है एंश्योर करें कि बच्चे जो है जब वो नए दोस्त बना रहे हैं तो पुराने दोस्त जो है वो एकदम से उनकी जिंदगी से गायब ना होना, उनके लिए बहुत डिस्टर्बिंग चीज होती है। तो ये तो बात हो गई अर्ली ईयर्स की या मिडिल जो चाइल्डहुड उसकी बात हो गई। लेटर लाइफ में भी इसी किस्म के, मतलब आपके जो बच्चे टीन एजेस में आ जाते हैं उनके साथ भी यही इशू होते हैं कि उनको अनइन्फॉर्म्ड रखा जाता है, या पेरेंट्स के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो उनके लिए बहुत अनसर्टेनिटी क्रिएट कर देते हैं। जब पेरेंट्स हेल्दी वे में अपने इश्यूज रिजॉल्व नहीं कर पाते तो अक्सर वो एक दूसरे को थ्रेटन करते हैं
लाइक तुम चली जाओ या मैं घर छोड़ दूंगी, वो नहीं, पेरेंट्स अपने स्ट्रेस में होते हैं, वो इस किस्म के जुमले बोल रहे होते हैं, लेकिन वो नहीं समझ आती कि उनके जो बच्चे हैं उनकी जो एक होम की सिक्योर एनवायरनमेंट है वो थ्रेटन हो रही है, उसकी वजह से काफी मेंटल हेल्थ इश्यूज जो हैं वो जनरेट होते हैं। वेरी ट्रू। फराह, मैं थैंक यू सो मच अमरा, ये बहुत इंसाइटफुल आपका जवाब था। फराह, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, पेरेंट्स किस, जैसे आपने एक बात की कि बहुत सारे आपके पास टीन्स आ रहे हैं जो उनको बॉडी एक्सेप्टेंस और सेल्फ एक्सेप्टेंस में बहुत मुश्किल हो रही है, पेरेंट्स किस तरह से इसमें अपना रोल प्ले कर रहे हैं? ऐसी क्या चीज है या क्या घर में गलत हो रहा है? क्या आप इसको हाईलाइट कर सकती हैं, बता सकती हैं हमें? देखिए, हमारे यहाँ कल्चर में एक तो हम जैसे स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है, तो ऑफ कोर्स सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट द चाइल्ड इज वाचिंग, व्हाट काइंड ऑफ द कंटेंट, बुलिंग का जो एलिमेंट है वो बहुत ज्यादा कॉमन हो गया। अच्छा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज दैट बुलिंग जो है ना वो सिर्फ बाहर नहीं होती, आउटसाइड ऑफ द हाउस नहीं होती, बुलिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द हाउस ओनली। ओके, बच्चे को पहला बुली करने वाले अपने खुद पेरेंट होते हैं या अपने सिबलिंग्स होते हैं, जो उसे कहते हैं तुम मोटे हो रहे हो, तुम कम खाओ, थोड़ा डाइट पे फोकस करो। These are those feedbacks or comments that actually play a huge role in the, in developing the self-esteem of a kid. अब हम जब सेल्फ स्टीम की बात कर रहे हैं, तो सेल्फ स्टीम में ये छोटे छोटे से कमेंट्स भी और आपके जो बिहेवियर्स होते हैं, जब आप कंपैरिजन करना शुरू हो जाते हैं वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल, तुम बहुत पहले पतली लगती थी, पतली लगती हो तो अच्छी लगती हो, जैसे प्यूबर्टी हिट करती है, यार तुम्हारी आवाज कैसी हो गई है, लग रहा है जैसे कोई अंकल बात कर, ऑल दीज स्मॉल कमेंट्स दे प्ले अ रियली ह्यूज रोल इन द सेल्फ स्टीम। अच्छा, दूसरा ये कि अभी जैसे बहुत मिस आमरा ने भी बोला और मिस नौशीन ने भी बोला, पेरेंट्स को आइडेंटिफाई करना है कि पहले उनकी अपनी थॉट प्रोसेसेस कैसे है, हाउ डू दे रिकॉग्नाइज देयर ओन फीलिंग्स, हाउ डू दे बिहेव इन फ्रंट ऑफ द किड। अगर वो कहते हैं एंशियस पेरेंट्स बिल्ड अप एंशियस किड्स, पेरेंट्स एंशियस होंगे तो बच्चे भी एंशियस होंगे। अगर पेरेंट इस चीज के बारे में बहुत वरीड है, माय गॉड हाउ डू आई लुक, हाउ माय किड्स लुक, हाउ लुक्स आर इम्पोर्टेंट, बॉडी इमेज का जो एलिमेंट है ना वो घर से स्टार्ट होता है। So ये वाली जो चीज है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, स्पेसिफिकली व्हेन द चाइल्ड हिट्स द प्यूबर्टी। उस एज में आप उन्हें बताएं, उनके साथ बैठें, आइडेंटिफाई करें कि यार these are the changes that you would get to see, don't worry about it, we will handle it together। हम सब go through करते हैं इस तरह के changes को, and then this is just a phase, it's gonna go away। So कुछ चीजों पे आपको अपने बच्चे को रिकॉग्नाइज करवाने के कौन कौन से सिम्टम्स एंड चेंजेस आएंगे। सेकेंडली, वही बात है, उनकी फीलिंग्स क्या है, उससे पहले अपनी फीलिंग्स को आइडेंटिफाई करें। ऑल दोज इनसिक्योरिटीज दैट्स कमिंग आउट, इज इट योर इनसिक्योरिटी और इज इट चाइल्ड्स इनसिक्योरिटीज? कई जगहों पे पेरेंट्स की अपनी इनसिक्योरिटीज, अपने प्रॉब्लम जो है ना वो बच्चों के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। So it's very important for parents to understand कि उनका thought process क्या है, how do they regulate their own feelings and emotions, and how do they behave in front of the kid। बिल्कुल ठीक है। अच्छा फराह एंड नौशीन, मैं चाहूंगी कि आप दोनों इसके ऊपर अपना इनपुट दें। हम जब ये बात हमने भी की, इसमें फराह ने एलैबोरेट भी किया कि किस तरह से घर में से रोल प्ले हो रहा है बच्चों की बॉडी एक्सेप्टेंस का और सेल्फ एक्सेप्टेंस का। इस फैक्टर का बच्चों पे, उनकी मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है when they are unable to accept the way they look, how much of this plays a role in their mental health? क्या impact है इसका? डेफिनेटली मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करते हैं, जितनी बात फराह ने की है, इसमें से मैं एक बात पहले ऐड कर दूं। जैसे ये कह रही है कि पेरेंट्स की अपनी इनसिक्योरिटीज होती हैं, इसके साथ साथ जो पेरेंट्स की फॉल्टी बिहेवियर्स होते हैं ना, वो भी बच्चा एब्जॉर्ब करता है, वो भी अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मदर बहुत ज्यादा फिनिकी है चीजों को ऑर्गेनाइज करने में, क्लीनलीनेस के ऊपर पर्टिकुलर है अबाउट सर्टेन थिंग्स, तो वो चीज बच्चे भी ले लेते हैं और वो अर्ली एज से उसी चीज को नॉर्म समझते हुए डेवलप करते हैं। तो वो चीज जो कि पेरेंट्स में होती है वो वहां करेक्ट नहीं होती, वो बच्चों में आ जाती है, एंड वो चीज और स्ट्रॉन्गर होती है एज दे ग्रो ओल्डर। सो कमिंग टू व्हाट यू जस्ट आस्क्ड, कि योर क्वेश्चन वाज कि हमें कैसे नजर आता है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं।
अगेन सबसे पहले तो उनके थॉट पैटर्न्स आपको फर्क नजर आते हैं। नंबर 2, उनके बिहेवियर पैटर्न्स आपको लगेगा कुछ डिफरेंट हैं, कुछ चीजें हैं जो कि नॉर्म से हट कर हो रही है। मूड स्विंग्स होंगे, ठीक है, फिजिकल कंप्लेंट्स होंगी। ये ब्रॉडली वो चीजें हैं जो कि आपको घर में नजर आता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, देयर इज अ चेंज in the pattern that the child probably had before, say a month ago or 2 weeks before. स्लीप पैटर्न चेंज हो सकता है, एपेटाइट चेंज हो सकती है, बच्चे का चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है, या बच्चा बहुत क्वाइट हो सकता है, टेम्पर टैंट्रम्स, अग्रेशन हो सकता है, कम्युनिकेशन में आपको उसके नजर आएगा, छोटी छोटी बात पे रो पड़ता है, टची हो जाता है, सेंसिटिव हो जाता है। ये कुछ वो चीजें, डरने लगता है, आई मीन एकदम से उसको लगता है, या अकेला सोने से डरता है, सोते में बार बार उठता है, डर जाता है, बाथरूम नहीं जाना चाहता अकेले। सो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें जहां उसकी डिपेंडेंसी पेरेंट्स पे इंक्रीज होने लगती है जो शायद पहले ना हो। So it is something that you need to write there, sit with the child, maybe talk it out with the child, ask the child कि क्या है। बहुत सारी चीजें जो जैसे बुलिंग की फरहान ने बात की, उसमें एक और चीज है कि हम एट टाइम्स बच्चों के प्यार में नाम बिगाड़ते हैं। अच्छा लगता है, हम उसको प्यार से बुलाते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है और वही नाम उसके साथ अगर स्कूल में बोला जाता है तो वो कहते हैं मेरे फ्रेंड्स के सामने आप ये नाम नहीं लें, यू नो दे यू नो तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि उसकी सेल्फ एस्टीम को एड ऑन कर रही होती हैं। एंड इसी से आपको फिर स्कूल में जाते हुए बच्चों की एकेडमिक्स में फर्क नजर आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो स्ट्रगल करने लगते हैं, उनका कंसंट्रेशन में भी शायद अप्रोप्रिएट ना रहे पढ़ाई में या काम में। तो छोटे मोटी चीजें आपको नजर आना स्टार्ट हो जाती हैं, आपने उस चीज को पकड़ना है। अगर बच्चा आपसे कुछ बात भी कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल मेरा दिल नहीं लग रहा, मुझे रोना आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे डर लग रहा है, मेरा दिल चाहता है मैं सब चीज को तोड़ दूं, मार दूं, you don't just listen to it, you listen to it very carefully and look for a pattern, because if there is something going on, पहली चीज जो करनी है आपने उसके इमीडिएट जो उसके अतराफ में लोग हैं जिससे वो क्लोज है, फैमिली मेंबर हो सकता है, सिबलिंग्स हो सकते हैं, बड़ा बच्चा है तो उसके दोस्त हो सकते हैं, उसकी टीचर्स हो सकती हैं, घर में आपकी डोमेस्टिक हेल्प हो सकती है। just go and get more information for your child, see that what you have or what you are catching, क्या इसकी और लोगों ने भी चीज ऑब्जर्व की है, and if you see a pattern, please go reach out to somebody, talk it out, maybe आपके पास ये false alarm हो, but rather than wait कि वो चीज बढ़ जाए, please go and talk to somebody. At times स्कूल में ही आपके पास काउंसलर्स होते हैं, कुछ नहीं तो जो उनके हेड्स होते हैं उनके पास एटलीस्ट, क्योंकि बहुत सारे बच्चों से डील कर रहे होते हैं तो वो आपको गाइड कर सकते हैं। प्लस आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, यूनिवर्सिटीज में है, डिपार्टमेंट्स हैं, देयर आर इंडिपेंडेंट पीपल हु आर वर्किंग, देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस हु आर वर्किंग, प्लीज रीच आउट, एटलीस्ट डिस्कस इट आउट, एंड इफ देयर इज समथिंग, यू नो व्हाट टू डू एंड वेयर टू गो। राइट। अच्छा, हमें बहुत सारे हमारे पास परवरिश में we've got a lot of teenagers also, और Instagram पे बहुत सारे हमारे पास टीन्स ने और यूथ ने जो है वो सवाल भेजे थे कि क्या ये तो हम कहाँ देख सकते हैं, एंड मुझे अच्छा लगा उनका इंटरेस्ट देख के। मैं बेसिकली बात दोबारा से लेकर आऊंगी बॉडी शेमिंग की, which I think is one of the most common issues found in our teenagers, and our parents need to realize, क्योंकि हमारे घरों में इस बात पे तवज्जो नहीं दी जाती कि बॉडी शेमिंग इनको मेंटली किस तरह से इम्पैक्ट कर रही है। I would really like Naushi, Farah and Amra to reflect on this. Okay, so Ishron, अभी मेरे पास एक client आ रहा था और the child was a kid, okay, 11-12 years old. A parent brought the child to me because the child has Googled ke when am I going to die. Okay, that was an alarm जिसमें बच्चे ने गूगल पे ये सर्च किया हुआ है कि मैं कैसे मरूंगा और मैं कब मरूंगा, ठीक है। And that was the sign that they have picked up. It's not any other sign they have ever picked up कि बच्चे के साथ बच्चा उसका मूड लो हो रहा है, any other thing. जब उन्होंने गूगल सर्च पे वो कहीं देखा तो फिर उन्होंने उससे पूछा, and then he said that yes, I don't enjoy my life anymore, I just want to die. So ये जो major common symptoms हैं जो कि हमें reflect करने हैं, हमें pick करने हैं। अच्छा, जब हम body image की बात कर रहे हैं, so I am talking about, I'm working with teens, and
literally 70% of the teens are facing body image issues because of the bullying at home or outside, like in their social circle. हमें पहले तो understand ये करना है कि when the child hits the puberty और वो अपना teenage के अंदर जाता है, so this is a normal phenomena कि बच्चा अपने आप को social environment के साथ, social circle के साथ attach करने की कोशिश करता है. अगर उसका social circle proper नहीं है या उसकी bullying बहुत ज़्यादा हो रही है, the child will feel low. The child will have low self-esteem because the child's self-esteem is reflected by the friends group he has. Okay. So उसमें फिर हमारा being parents हमारा क्या role आता है? एक तो बच्चे की self-esteem low हो रही है, उसके academics पे issues नजर आना शुरू हो जाएंगे, उसकी socialization reduce होना शुरू हो जाएगी, उसका emphasis अपनी body पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा. No, I don't want to eat this. बार बार mirror को देखना, बार बार body size, kgs कैसे हो रहे हैं. A lot of time people have stopped eating as well. खाना नहीं खा रहे हैं, sleep, deprived है. Because they think that that's how they're going to lose weight. अच्छा, उस time पे being parents, it's very very important that we sit with them and we talk about it, have an open communication, talk about it कि yes, I have been through this as well, कि हमने भी कहीं ना कहीं अपनी life में ये चीज face की है, and how can we overcome it together. So देखें, bullying जो है ना वो बाहर भी है, bullying somehow अंदर भी है. बच्चा ट्रॉमा से बाहर भी गुजर रहा है, लेकिन what kind of support system do we provide to the kid, that is really really important. और support system आपका घर का वो system है जहाँ पे the child can come and talk to you openly without feeling or being judged. जब वो आके ये बात करे कि I'm not liking my body, and you don't say that what is wrong, तुम्हें शुक्र अदा करना चाहिए, ठीक है? Rather than understanding, yes, I understand you're going through something right now, we can talk about it, I'm here to listen to you. So this is important. इसको हम कहते हैं कि social circle आपका social support आपकी strong होनी चाहिए. जब आपकी social support strong होगी, you can build resources in the kid, you can build coping styles into the kid. पर जब तक social support important आपकी strong नहीं है, आप जितना बाहर बच्चा जितना लड़ रहे, खुद से लड़ ले, वो overcome नहीं कर सकता इस तरह के issues को. I Amra, want what to would add you like something. Yeah, please go ahead. Amara. Let Amara speak first. ठीक है, Amra, please go ahead. Okay, वैसे तो नौशीन और फरहान ने बहुत डिटेल में बॉडी इमेज को डिस्कस किया है. I would like to add my 2 cents as well. मेरे पास because I've been a university teacher as well, तो मेरे पास 17, 18, 19 ये वाली टीनेज के स्टूडेंट्स जो हैं मेरे पास अक्सर होते हैं, और उनके साथ ही बॉडी इमेज के इश्यूज होते हैं. हम ये बात कर रहे थे कि व्हाट आर द साइंस कि जिससे आपको पता चले कि चाइल्ड इज हैविंग बॉडी इमेज इश्यूज. इसमें बच्चे जब टीन्स में आते हैं, उनकी ग्रोथ स्पर्ट्स शुरू होते हैं, तो उसमें डिफरेंस होता है, आपस में डिफरेंस होता है. कुछ फ्रेंड्स में पहले आ जाता है, कुछ फ्रेंड्स में देर में आता है. दे स्टार्ट कंपेयरिंग देमसेल्व्स विद ईच अदर. बात दफा जिसमें पहले आया है वो लो सेल्फ एस्टीम का शिकार हो जाता है, उसको लगता है कि जैसे पता नहीं मेरे साथ कुछ अजीब सा हो गया है. बात दफा जिसका डिले होता है, कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं तो बहुत देर में आता है, 1 साल 1.5 साल डिले हो गया, तो उनको लगता है कि हम पीछे रह गए हैं और हमारी हाइट बहुत कम है. वो ये चीजें जो है वो सोचना शुरू कर देते हैं, बिकॉज दे आर कंपेयरिंग देमसेल्व्स. पेरेंट्स नहीं भी उनसे कुछ कह रहे, घर से कोई बात नहीं भी है, तो वो अपने आप कंपेयर करना शुरू करते हैं. पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा? पेरेंट्स को ऐसे पता चलेगा कि बच्चा बात करता है. बच्चा चूंकि ओवर फिक्सेटेड होता है विद बॉडी इमेज, तो वो बात करेगा कि अगर उसको अपनी बॉडी बहुत स्लिम है तो वो न्यूट्रिशन की बात करेगा कि मुझे ऐसी डाइट की जरूरत है जिससे मैं वेट पुट ऑन करूं. और अगर उसका वेट ज्यादा है तो वो हो सकता है कि उसमें ईटिंग डिसऑर्डर्स डेवलप हो जाए और वो खाना छोड़ दे कंप्लीटली जस्ट टू शेड ऑफ दैट वेट. वो हो सकता है कि पूरे फूड ग्रुप्स छोड़ दे, और ऐसा होता है खासतौर पे गर्ल्स में कि पूरे फूड ग्रुप्स जो है वो छोड़ दिए जाते हैं. और कुछ बच्चे जो है वो एक्सेसिव जिमिंग स्टार्ट कर देते हैं, वो एक्सरसाइजेस बहुत टफ करना स्टार्ट कर देते हैं, सो दैट दे मे रिटेन अ सर्टेन काइंड ऑफ बॉडी वेट. तो ये कुछ ऐसी चीजें होती है. और फिर इस किस्म के बच्चे अगर नहीं भी जा रहे, अगर उनके लाइफस्टाइल में ये चीजें नहीं भी है, तो पेरेंट्स से डिमांड करने लगते हैं कि आई वुड लाइक टू जॉइन द जिम, नॉट
because of fitness, because of having problems with their body image. उनको लगता है कि उनकी जो body, even boys में, girls की मैंने बात की, boys में भी ऐसे ही होता है कि अगर वो lean है बहुत ज़्यादा या वो overweight हैं, तो they get bullied at school for that, कि hanger पे कपड़े लटके हुए हैं, या ये कि वो देखो हिपो आ रहा है। तो इस किस्म की चीजें जो है बच्चे, ये जिसको टीनेजर है, इसको हम एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉन्ग कहते हैं। इस वक्त बच्चे बहुत ओवर सेंसिटिव होते हैं। जरा सी बात, एक छोटा सा जुमला, एक छोटा सा लफ्ज जो है उनको बहुत बुरे तरीके से हिट करता है, बिकॉज उनकी इमोशंस जो है वो खासी स्ट्रॉन्गी होती हैं उस वक्त। तो जब उनको ये चीजें सुनने को मिलती हैं तो फिर वो उस पर काफी देर सोचते हैं। और पेरेंट्स इसी तरीके से पिकअप कर सकते हैं। अगर बच्चा कह रहे हैं, मतलब आउट ऑफ ब्लू बच्चे ने कहना शुरू कर दिया कि मुझे जिम ज्वाइन करना है, तो यू जस्ट सिट विद दैट चाइल्ड, गर्ल है या बॉय है, उससे डिस्कस करें कि अचानक क्यों हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना बहुत अच्छी बात है, ये चीजें पार्ट ऑफ लाइफ होनी चाहिए, स्पोर्ट होना चाहिए, बट ये कि नॉट बिकॉज दे आर बीइंग बॉडी शेम्ड। बिल्कुल ठीक है। अच्छा नौशीन, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एट व्हाट एज डू चिल्ड्रन शो साइंस ऑफ मेंटल इलनेस? हाउ अर्ली, कितनी छोटी एज से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं चीजों? Well, at a very young age, if a child is uncomfortable, the child will tell you. बहुत छोटा बच्चा भी, उसको गुस्सा आता है ना, वो आके आपको काट लेता है, ठीक है, और गुस्से से कोई चीज पटक देता है, ठीक है, वो उसका एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन को हमने इनकरेज करना है बच्चे की। हर उम्र में बच्चा जो है वो आप उसके एक्सप्रेशन से चीजों को पिक कर सकते हैं। जब, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि बिहेवियर इज कम्युनिकेशन, आप उनके बिहेवियर में चेंजेस देखेंगे, यानी वो ऐसे बिहेवियर्स होंगे जिसको आप कहेंगे ये बच्चा बदतमीज है, जो हमारे कॉमनली जो हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, ये बच्चा बिल्कुल बेकैना है, सुनता नहीं है। सो ये जो हम टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं, जिनको हम अपने घर में आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं, क्लासरूम में इस्तेमाल करते हैं, वो बच्चे के एक तरह से लेबल लगा देते हैं। सो बच्चा कहता है अच्छा मैं ऐसा ही हूँ तो मैं ठीक हूँ, इतना छोटा बच्चा, उसको क्या पता। सो वी नीड टू सिट विद चिल्ड्रन एंड it's okay to be naughty, it's extremely all right to be mischievous at times, लेकिन we need to see कि क्या ऐसी चीज है जिससे खुद को या दूसरे को नुकसान पहुंच रहा है, क्या वो ऐसी हरकतें करता है जिससे किसी दूसरे की तकलीफ होती है, जिसमें टीजिंग हो सकती है, जिसमें टॉन्टिंग हो सकती है, जिसमें ये सब बुलिंग का ही पार्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं। सो बुलिंग की जब हम बात करते हैं या बुलिंग की ही हम शक्लें देखते हैं तो बहुत सारी शक्लें हैं। बुलिंग में वो चीज भी आती है जब माँ बाप बच्चे को थ्रेटन करते हैं या टीचर थ्रेटन करती है कि अच्छा अगर तुमने ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा। सो ये सब हम लेते हैं एज अ डिसिप्लिनरी मेथड, राइट, बट दीज आर नॉट डिसिप्लिनरी प्रैक्टिसेस। ये इन अ वे यू, बिकॉज यू बुलिंग, व्हाट इज बुलिंग? बुलिंग इज इम्बैलेंस ऑफ पावर। मेरे पास पावर है, मैं उसको मिसयूज करूंगी। So whether I'm a parent or a teacher or a student or a friend, if I misuse my power over my other person, I'm being a bully. So whether you're a bully or you're being bullied or a victim, you both need help. और बुलिंग की जब हम बात करते हैं उसमें आप ये भी देखिए कि आजकल जो मीडिया इन्फ्लुएंस है वो आपको बॉडी परफेक्शन की तरफ लेके जाता है। यू नीड टू look a certain way, act a certain way, wear a certain brand in order to be accepted because your friends are doing so, right? Even छोटे से बच्चे को पता है कि अगर वो बर्गर है या बन कबाब है तो वो कहाँ का खाना है, क्योंकि वो भी एक स्टेटस सिंबल है, right? So there are a lot of things that have an interplay जिसकी वजह से आप देखते हैं कि ये बुलिंग की चीज डेवलप भी होती है, इससे सेल्फ एस्टीम इश्यूज भी होते हैं। इसको आप और मैं बहुत नॉर्म्स में लेते हैं बिकॉज ये मेरे और आपके घर की कहानियां हैं, हम भी मजाक करते हैं, लेकिन हम उस मजाक में मजाक तो कर रहे हैं लेकिन वो मजाक एक लेवल से ज्यादा हो जाता है तो वो चीज उस बच्चे को अफेक्ट करने लगती है। बच्चे के अगर आपके साथ भी कोई एक हद से ज्यादा करेगा तो वो आपको बुरा लगता है। सो ये सब चीजें हैं जो कि आपकी मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट करती है। एज पेरेंट्स व्हाट वी कैन डू is that सबसे पहले तो हम अवेयर हो, if we want to help our children we need to upgrade ourselves, we need to change our parenting style and I'm not saying कि हमारा parenting style खराब है, हमें इसको कल को
आज से बेहतर करना है। हमें अपने बच्चों से सीखना है। टाइम्स ये हमें बहुत अच्छी एग्जांपल्स देते हैं, बहुत अच्छे सॉल्यूशंस बताते हैं। ये हमें बताते हैं कि मामा आज आप बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही हैं, आज आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस yeah. आउट हैं, तो आप क्यों इतने जोर से बोल रही हैं? सो दे आर वेरी ओपन टू से दैट, राइट? So we need to listen to them and we need to correct ourselves there too. It has to go hand in hand. We need to allow them in our space. Only then they will allow us to be a part of their world. So अगर हम बच्चों को अपने साथ बात नहीं करेंगे, उनकी सुनेंगे नहीं, तो फिर बच्चे दूर होते चले जाएंगे, क्योंकि उनके पास अब एक सरोगेट अनफॉर्चुनेटली ये स्क्रीन है जो उनको हर तरह की इंफॉर्मेशन दे रहा है विदाउट एनी फिल्टरेशन। सो उनकी वर्चुअल फ्रेंडशिप्स भी यहाँ है, उनकी सारी इंफॉर्मेशन है। आपके पास शायद उस सवाल का जवाब नहीं है, वो खुद ढूंढ लेगा। जैसे फरहान ने कहा कि वो गूगल कर लेता है, तो वो गूगल बहुत सारी चीजें करता है। तो आपने एक स्टेप फॉरवर्ड होके उसके साथ बात करनी है, बेटा ये चीज हो रही है, ये और जगह भी हो रही है, शायद तुम्हारे फ्रेंड्स भी एक्सपेरिमेंट करें, शायद तुम्हारे कोई जानने वाले भी करें, अगर तुम भी इस तरफ टेम्प्ट हो, डू लेट मी नो, इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं और ये चीज है। We cannot be with them all the time, but we can teach them what to look out for. We need to sit and talk to them about a lot of issues that are happening around, because they do hear, they do see, they do hear it from their friends. They know what is happening. हम hush up ना करें. We need to have this open conversations with them, and right now there's no age. बहुत early years में भी वो बहुत ready हैं आपसे बात करने के लिए। तो हमें रेडी होना चाहिए उनके लेवल पे आने के लिए, ताकि हम भी अपना बार और अपनी पेरेंटिंग को बेहतर कर सके, एंड साइमल्टेनियसली बी देयर फॉर आवर चाइल्ड। कहीं वो किसी और से जाके वो इंफॉर्मेशन ले जो गलत हो और वो उस पे डेवलप करे, तो दे नीड टू हियर इट फ्रॉम यू देन एनीबॉडी एल्स। completely. थैंक यू सो मच नौशीन। अच्छा फरा, मुझे एक ये सवाल बहुत सारे पेरेंट्स ने किया था, एंड आई वुड रियली लाइक फॉर यू टू आंसर दिस, कि a lot of school going kids now suffer from anxiety. How can parents assist their kids? ठीक है, पहले तो हाँ देखिए, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है फर्स्ट आइडेंटिफाई द ट्रिगर्स ऑफ एंजाइटी। वो ट्रिगर्स क्या है? बिकॉज अभी राइट नाउ आवर किड्स आर अंडर, लाइक मैं उन्हें कहती हूँ प्रेशर कुकर में, हर चीज का प्रेशर उनके ऊपर है, सोसाइटी का प्रेशर, social circle का pressure, academics का pressure. So they are under pressure a lot of times. So first identify the trigger of anxiety. What anxiety trigger क्यों हो रही है? What is the real cause for it? Is it academic related? Is it body image related? Is it related to meeting, social interaction में problem हो रहा है? So पहले identify करें triggers. Then again, it's important. A lot of times हम anxiety को physical, of course, जब anxiety होती है किसी को तो panic attacks भी हो सकते हैं. Anxiety है तो आपको physical symptoms बहुत ज़्यादा commonly नजर आएंगे. You work on physical symptoms as well. Simultaneously focus on what is going on in the head of the kid. Anxiety provoking कौन से elements हैं जिसके ऊपर काम करना चाहिए. First, second thing is that how can you be an assistant to the kid? आप कैसे assist कर सकते हैं, वो important element है. Assistance में after identifying the triggers, you need to analyze. You have to calm yourself down first, then help the kid. Okay? Because अगर मैंने जैसे पहले भी mention किया है, anxious parents produce anxious kids. So आपने अपनी anxiety को पहले handle करना है so that you can help your child. Secondly, हम बहुत सारी different activities हैं जिसके through हम वो first aid दे सकते हैं anxiety का. One is like deep breathing exercises. Honestly speaking, a lot of times people don't know how to actually deep breathe. Inhale and exhale करना हमें पता है, लेकिन हमें rightly कैसे करना है वो हमें नहीं पता. ठीक है? So वो करना. उसके बाद distract them to the physical symptoms. Like हम 5 senses exercise करते हैं. This is a very simple exercise. 5 senses exercise में you just ask the kid, can you tell me what do you see in the room? Can you count and tell me 5 things that you see in the room, 4 things that you could hear, something. कभी होता है कि आप उनको sensory या tactile touch provide करते हैं, just hug the child, emotional regulation produce होता है. ये वो normal symptoms हैं या normal activities हैं that you can do at home just to regulate the emotion of the kid, which is like anxiety.
बॉडीली सिम्टम्स के ऊपर काम करें, टेल देम कि वेयर आर यू फीलिंग दैट थिंग इन योर बॉडी, वो अगर आपके चेस्ट पे है व्हाट काइंड ऑफ बर्डन इज दैट, सो वो फिजिकल सिम्टम्स के ऊपर भी देखा जा सकता है। उसके बाद इफ यू थिंक it's real anxiety, you need to see a therapist for this, because अंडरलाइंग कॉजेस को आइडेंटिफाई करके सॉर्ट आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जगहों पे कुछ चीजें आप खुद नहीं कर सकते, आप फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हैं एंड देन लुक फॉर अ थेरेपिस्ट, look for a professional who can help the child going through or overcome this issue. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया फरा। अच्छा आमरा, नेक्स्ट सवाल मेरा आपसे है कि what are the signs of a troubled child? अच्छा, ये हम थ्रू आउट द डिस्कशन हम बार बार इस किस्म की चीजें डिस्कस करते रहे। एक ट्रबल्ड चाइल्ड जो है वो उसके बिहेवियर, हम उस वक्त की बात करें जब उसको कोई इशू डेवलप हो रहा है तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, चाहे वो इरिटेबल हो जाए, हो सकता है कि वो विड्रॉन हो जाए, वो बातचीत करना छोड़ दे, एक सैड एक्सप्रेशन जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है उससे। उसके अलावा लो सेल्फ एस्टीम हो सकती है, कॉन्फिडेंस लेवल उसका जो है वो ड्रॉप हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द चाइल्ड इज गोइंग थ्रू। लेकिन पेरेंट्स जो चीज डिटेक्ट कर सकते हैं अपने बच्चे में वो उसका बिहेवियरल चेंज है, ये जो कि बहुत अपैरेंट होती है कि उसका बिहेवियर जो है वो चेंज हो गया है, उसकी इमोशनल रिएक्शंस जो है वो उसके नॉर्मल से डिफरेंट है। जैसे वो बहुत सैड दिख रहा है, वो गुफ्तगू में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ये जो चीजें हैं ये बताती हैं कि बच्चा जो है ही इज हैविंग सम ट्रबल। और इसके अलावा जो चीज पेरेंट्स अगर बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड हैं विद देयर ओन थिंग्स, जो वो चीज देख नहीं पाते हैं, वो रिएक्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ रिस्पॉन्डिंग, कि बच्चा जो है उसकी रिलेशनशिप्स जो है वो खराब होना शुरू हो जाती हैं। इट मे बी कि उसके जो पहले बहुत फास्ट फ्रेंड्स थे वो अब वैसे उनकी उससे दोस्ती नहीं रही, उसके दोस्त कम होना शुरू हो गए हैं, लोग उसको गेम्स में इन्वॉल्व नहीं करते, तो या वो खुद जो है वो मना कर देता है। तो ये वो चीजें हैं जो कि आपको बता रही है कि बच्चे के साथ कोई इशू है, उसको डिस्कस करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। हमारा अगला जो आखिरी सवाल है वो ये कि हाउ डू आई नो इफ माय चाइल्ड इज स्ट्रगलिंग विद मेंटल इलनेस? अच्छा, इसमें तीन चीजें जो है वो आपको यू हैव टू लुक फॉर इट। सबसे पहले उसका इमोशनल एक्सप्रेशन। इमोशनल एक्सप्रेशन हम किसे कहते हैं? वो सैड है, वो हैप्पी है, वो एक्साइटेड है, ये आपको पहला इंडिकेटर होता है अगर इसमें कोई तब्दीली आ रही है, या ये कि ये चीजें अप्रोप्रिएटली डेवलप नहीं हुई। बहुत छोटे बच्चों की जब हम बात करते हैं, अभी आपने एक सवाल ये भी किया था कि अर्लीस्ट सिम्टम्स क्या होते हैं या कैसे हम अर्लीस्ट डिटेक्ट कर सकते हैं, तो बहुत छोटे जो बच्चे होते हैं फर्स्ट 2 इयर्स में डेवलपमेंटल डिलेज, 18 to 24 मंथ्स की एज में डेवलपमेंटल डिलेज जो हैं वो हमें बताते हैं कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द चाइल्ड। और योर पीडियाट्रिशियन इज द पर्सन जो कि हु इज द फर्स्ट वन टू डिटेक्ट कि अच्छा बच्चा जो है, क्योंकि वो उसकी फिजिकल हेल्थ भी चेक करता है, जब आप उसके पास वैक्सीनेशन के लिए लेके जाते हैं तो वो बता सकता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द चाइल्ड। सो उसमें बाज़ दफा बच्चे एप्रोप्रिएट इमोशन डिस्प्ले नहीं करते हैं, वो उनको किसी की तकलीफ का एहसास नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत छोटा बच्चा भी जो है वो इमोशन डिस्प्ले करता है। अगर आपने एक छोटा बेबी उठाया हुआ जो जस्ट 1 year old है और आपको चोट लगी तो वो बच्चा रोना शुरू हो जाएगा क्योंकि वो कर रहा है। सो ये इमोशनल एक्सप्रेशन जो है वो पहला इंडिकेटर है जो आपको बताता है कि बच्चे के साथ कोई इशू है। सेकेंड जो चीज है दैट इज बिहेवियर, कि उसका बिहेवियर कैसा है। बहुत से पेरेंट्स जो हैं वो पेरेंट्स या आप सिबलिंग्स एवरीवन अराउंड वो बिहेवियरल जो इश्यूज होते हैं वो उनसे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और उसको उसमें एक लड़ाई की सी कैफियत शुरू आती है। वो ये नहीं अंडरस्टैंड कर पाते कि मे बी द चाइल्ड, मे बी द पर्सन इज गोइंग थ्रू सम मेंटल हेल्थ इशू, तो उसमें उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। They may get into fights, उनकी relationships खराब होना शुरू हो जाती है with the siblings, with the parents, with the friends, with co-workers। वो जो है टीम में काम नहीं कर पा रहे होते हैं,
वो अपने कमरे में ज्यादा रहना शुरू हो जाते हैं, ये एक इसका इंडिकेटर है मेंटल हेल्थ इशू का। अच्छा, साथ ही साथ ये जो हम जब बात करेंगे बिहेवियरल इशू और कमरे में ज्यादा रहना है, तो एक चीज जो हम मेंटल हेल्थ के साथ इतनी ज्यादा एसोसिएट नहीं करते, लेकिन इससे रिलेटेड है, दैट इज ड्रग एडिक्शन। बच्चे जो है वो एक्सपेरिमेंट बाज दफा कर रहे होते हैं दोस्तों के साथ, ड्रग्स के साथ, स्मोकिंग के साथ, इन सब चीजों के साथ। तो ये जो इंडिकेटर आपको कहाँ से मिलेगा? आपको बच्चे के रूम से मिलता है। बच्चा अपना टाइम जो है वो रूम में स्पेंड करता है, या वो बाहर उसको जाना जरूरी होता है, वो 24 घंटे घर के अंदर छुट्टी वाले दिन भी नहीं रह पाता, बिकॉज उसको अपनी वो ड्रग या वट एवर दैट चाइल्ड इज डूइंग वो उसको लेना है। सो अगर उसके कमरे में एयर फ्रेशनर बहुत ज्यादा स्प्रे होना शुरू हो गया है, उसने माउथ फ्रेशनेस बहुत ज्यादा यूज करना शुरू कर दिए हैं, उसके कमरे में कुछ ऐसी चीजें पाई जा रही हैं जो दैट स्मेल नाइस बट वो उससे पहले फिक्सेटेड नहीं था। सो ये चीजें, क्योंकि बेसिकली उसकी स्मेल खत्म करने के लिए वो ये काम कर रहे होते हैं। तो ये चीजें जो है, अगर आपका बच्चा आउट ऑफ व्यू करना शुरू हो गया तो यू लुक इनटू इट, कहीं उसमें कोई स्मोकिंग या स्मोकिंग से भी आगे आजकल काफी चीजें हैं कि उस साइड पे तो जाना नहीं शुरू हो गया है। देन थर्ड चीज है दैट इज उसकी थॉट प्रोसेस चेंज होना शुरू हो जाता है। उसकी बातें जो हैं वो बहुत हो सकता है कि आपसे बहस में बहुत ज्यादा उलझे, और उसकी बातें जो है वो लॉजिक उसमें कोई ना पाई जाती हो। तो ये एक थर्ड इंडिकेटर है। तो ये तीन चीजें जो हैं इनके कॉम्बिनेशन से इनमें जब तब्दीलियां आ रही होती हैं, या ये कि बहुत अर्ली बात करें तो ये चीजें अप्रोप्रिएटली डेवलप नहीं हो पा रही होती, क्योंकि एक खास एज में आके बच्चे को एक खास किस्म की इमोशनल और सेल्फ रेगुलेशन जो है उससे एक्सपेक्टेड होती है। तो अगर वो चीजें टाइमली नहीं हो रही हैं, डिलेस हो रहे हैं, या ये कि इनमें तब्दीलियां आ रही हैं, एक दफा डेवलप हो गई थी और तब्दीली आ रही है, तो ये इन चीजों से हमें पता चलता है कि बच्चा जो है उसके साथ कोई मेंटल हेल्थ इशू आ रहा है। क्योंकि पेरेंट्स यूजुअली ये चीज बिहेवियरल इश्यूज इग्नोर कर देते हैं, उससे बच्चे से लड़ाई शुरू कर देते हैं, बच्चे को डांटना शुरू कर देते हैं, वो डॉक्टर के पास नहीं जाते। तो जब बच्चा इस किस्म के इश्यूज डेवलप कर रहा है, वो ज्यादा कमरे में रहना शुरू हो गया, तो फिर आपको थोड़ा सोचना चाहिए, उसे बात नहीं अगर कर पा रहे तो टेक हिम टू द mental health practitioner, him or her. Very insightful responses, Amra, Nausheen and Farah. बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही we would like to end our session, but before ending our session, I would like all of you कि अगर आप जाने से पहले कुछ मैसेज देना चाहें, कुछ important बात कहना चाहें for all the parents listening to us, ये बहुत proactive session चल रहा है। We've got a lot of engaging parents on the session right now. बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, और मगर मैं ये देख रही हूँ कि जितने भी हमारे पास सवाल आ रहे हैं पेरेंट्स की तरफ से कमेंट्स में, वो सब आप लोगों ने बहुत तफसील में आंसर कर दी। एनीबडी वांट्स टू हैव दीज आंसर्स, वो बैठ के आराम से इस इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन को जरूर सुने, एंड दे विल गेट देयर आंसर्स इंशाल्लाह। So before leaving, I would like each of one of you to leave a message or a special something that you would like to say to all the parents. Amra, as a parent, I would. Nausheen, go take a start. Okay, I think as a parent, you need to listen to your sixth sense, because we know when something is wrong. So as a parent, you know there is something that's not fitting in. Please talk to somebody about it. Look for guidance. कोई भी छोटी सी भी चीज अगर आपको लगती है कुछ डिफरेंट है, कोई ख्याल, कोई बच्चे ने बात कही है, कोई उसका बिहेवियर है, प्लीज किसी से बात करें और डिस्कस करें। और अगर आपको लगता है कि इसको नहीं, हमें थोड़ा और आगे प्रोफेशनली बात करनी चाहिए, तो जरूर करें। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, एंड हैव एन ओपन कम्युनिकेशन विद योर चिल्ड्रन। प्लीज टॉक टू देम, बी अ फ्रेंड, बी समबडी कि वो आपके पास खुश होकर भी आए, और जब वो सब परेशान हो तब भी आपके पास है। So be that parent कि you are always available to them through thick and thin. Very important, very important. Anyone else? Okay, मेरा पेरेंट्स के लिए मैसेज ये है कि उनको अपनी रिलेशनशिप, if they have got a child,
तो उस चाइल्ड का ये हक है कि पेरेंट्स जो हैं वो अपनी आपस की रिलेशनशिप पे काम करें और उसको बच्चे के लिए बहुत बेहतरीन बनाएं। और अगर आपस की रिलेशनशिप इंप्रूव नहीं हो रही, वो कोल्ड वॉर की तरफ जा रही है, तो भी बच्चे की बेहतरी के लिए बैठें और जो डिसीजंस बच्चे के लिए बेहतर हैं वो मिलकर लें। आपस में आपके जितने भी इख्तलाफात हैं वो आपकी एडल्ट लाइफ तक रहने चाहिए, वो बच्चों तक नहीं आना चाहिए। दूसरा मेरा मैसेज उन मदर्स के लिए है जो कि एक अब्यूसिव रिलेशनशिप में स्टे करती हैं। जब कोई मदर अनफॉर्चुनेटली अब्यूसिव रिलेशनशिप में होती है तो शी मेक्स अ choice of staying in that relationship out of the fear of poverty. So मेरा ये ख्याल है कि दोनों चीजें जो हैं वो बच्चे के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हैं, अब्यूज भी और पेरेंटल अब्यूज भी, क्योंकि एक फादर जो मदर को अब्यूज कर रहा है वो सिर्फ मदर को ही अब्यूज नहीं कर रहा, वो बच्चे को भी अब्यूज करता है और बच्चा वो उस माहौल में रहता है तो उसके लिए बहुत स्ट्रेसफुल होता है। सेकेंडली खवातीन को अक्सर ये डर होता है कि उन्होंने अगर ये रिलेशनशिप एंड की तो उनके पास जो है रिसोर्सेस भी नहीं रहेंगे बच्चे को ब्रिंग अप करने के लिए। मेरा ये ख्याल है कि मदर्स शुड वर्क हार्ड, उनको जो है एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहिए, उनको अपने आप पर भरोसा करना चाहिए और उनको कुछ टफ डिसीजंस लाइफ में लेने चाहिए बच्चे की बेहतरी के लिए। सो ये मत सोचिए कि अगर आपका बच्चा जो है उसको फाइनेंशियली जो है कोई इशू नहीं है तो अब्यूज जो है वो उसको अफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि अब्यूज तो आप पे हो रही है। ऐसा नहीं है, बच्चा आपको अब्यूज होते हुए देख रहा है, वो उस चीज को सीख रहा है, या तो वो उसको कंप्लीटली अवॉइड करने की कोशिश करेगा या वो रोल अडॉप्ट कर लेगा, दोनों चीजें सही नहीं है। So please think over it. Okay, lastly, I would say be the change that you want to see in the world. So for parents, if you want to see that your child grow and the child becomes what you want to see, be that change, be that person, because the child is going to model you, right? Secondly, एक छोटी सी टिप है for parents, and that tip is कि अपनी लाइफ के ना ये एक रूल बना लें, डिसिप्लिन बना लें कि हमेशा एक बास्केट रखें जो कि नॉन निगोशिएबल बास्केट है। इंट्रोड्यूस दिस कॉन्सेप्ट एट होम। नॉन निगोशिएबल बास्केट का मतलब है वो वाले सारे रूल्स जो कि घर में अप्लाई होंगे। फॉर एग्जांपल छोटे मोटे रूल्स हो सकते हैं घर के, कि रिस्पेक्टफुल बिहेवियर हो, हिटिंग बिहेवियर नहीं होगा, you know what kind of games that you can not play in the house. So वो एक नॉन निगोशिएबल वाला एलिमेंट होगा, बास्केट होगी जिसमें all those elements that you don't want to negotiate on. One basket is negotiable. For example, what to eat, when to sleep, when to study, all those elements जहाँ पे negotiation हो सकती है, जहाँ पे बातचीत हो सकती है. And the third element is the later part. Not everything is to be fight for or fought for. Priority set करें. Like I said earlier as well, choose your battles. Not everything that needs to be, come on priority. कुछ चीजें आप later on delay कर सकते हैं. जब ये 3 बास्केट आप घर में इंट्रोड्यूस करेंगे, so these baskets are for everyone. जब आप वही चीजें मॉडल करना शुरू करेंगे ना घर में, automatically you will see that the child is growing in a very positively, because you're giving freedom to the kid. There is a conversation going on as well, because जब आप कह रहे हैं negotiable है, तो there is one-on-one conversation that can happen. Communication build हो रहा है, or the child also knows what are my boundaries and what is acceptable in the house and what is not acceptable in the house. This is a very simple trick, but it actually adds a lot of value in your parenting. So I think आप अगर कोई change देखना चाहते हैं, पहले वो change अपने अंदर लाएं, उसके बाद portray it to the kids, and you will see कि बच्चे खुद automatically blossom करना शुरू कर देंगे. Excellent. Thank you so much, Amra, Nausheen, and Farah, इतनी डिटेल और इतनी इंसाइटफुल कन्वर्सेशन के लिए। एंड आई एम श्योर कि हमारे पास माशाल्लाह से वी आर रीचिंग 18,000 मेंबर्स नाउ। आई एम श्योर कि every single one of them must have learned something. They must have picked up very integral points, very important things that they were looking for
बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की वक्त का and to share your expertise and your wisdom. Thank you so much everyone for watching us. Allah Hafiz everyone. Allah Hafiz. Allah Hafiz.